اور آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤالدین میں لگے واٹر فلٹریشن پلانٹ تباہی کا شکار ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے، جس کی وجہ سے شہری مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات عرفان وڑائچ کی رپورٹ میں۔ منڈی بہاؤالدین میں لگے واٹر فلٹریشن پلانٹ تباہی کا شکار ہے۔ پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا، شہری مہنگے داموں صاف پانی خرید کر پینے پر مجبور ہے۔ میونسپل کمیٹی کے احاطے میں لگایا گیا فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند ہے۔ میونسپل کمیٹی کی عدم دلچسپی کی وجہ سے فلٹریشن پلانٹ کے نال اور ٹوٹیاں غائب ہونے کے ساتھ فلٹریشن پلانٹ خستہ حالی کا شکار ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں گورنمنٹ نے جتنے لگائے تھے ایرو پلانٹ وہ سارے بند پڑے ہیں۔ ماہ رمضان میں لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مہنگے داموں پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں۔ اس لیے ہم بلدیہ سے اور سی او بلدیہ سے اور انتظامیہ سے التماس کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد ٹھیک کیا جائے۔ صاف پانی کے پلانٹ بلدیہ نے لگا تو دیے، مگر یہ سارے پلانٹ بند پڑے ہیں اور لوگ پانی مہنگا خریدنے پر مجبور ہیں۔ زیر زمین آلودہ پانی ہونے کی وجہ سے شہری ہیپاٹائٹس سی اور پیٹ کے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ کو جلد سے جلد ٹھیک کروا کر پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان وڑائچ، بیورو چیف، سچ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔ اور میونسپل انتظامیہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ دارا دین پناہ میں سیوریج سسٹم جواب دے گیا ہے، گٹر ابل پڑے ہیں۔ تعفن اٹھنے کے سبب اہل علاقہ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عارف بلوچ کی رپورٹ میں تفصیلات۔ دارا دین پناہ انتظامیہ کی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے چوک سرور شہید روڈ جوہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ روڈ کے ساتھ مدرسہ ہونے کی وجہ سے طلبہ اور نوازیوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ روڈ پر پانی کے تالاب ہونے کی وجہ سے مسافروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ علاقہ مکینوں کے بچے مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ نکے نکے بچے آندن مسجد پڑھن واسطے وہ بڑے تنگ تھیندن کہ ساری کمیٹی والوں کا اپیل ہے کہ پانی جلد تو جلد نکاسی کی تھی ونجے۔ اگو کھالا باندھے پانی نہیں وان سکتا، سارے تنگ تھے بچے آندن نکے نکے نماز پڑھن اور قرآن پڑھن آندن اور انہیں کپڑے خراب تھے۔ شہریوں نے کمشنر نیرا غازی خان اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عارف بلوچ، سچ نیوز، دارا دین پناہ۔ اور سناما کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کے لیے سبسڈی میں گھی ختم کر دیا گیا۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں گھی خریدنے پر مجبور ہیں۔ منیر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر وزیر اعظم رمضان المبارک ریلیف پیکٹ صرف دعووں تک محدود ہے۔ عام صارف تو دور کی بات، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کو ملنے والی سبسڈی سے گھی بھی غائب کر دیا گیا اور آٹا بھی نہیں مل رہا۔ خریداری کے لیے آنے والے صارفین کا کہنا ہے اشیاء خورج و نوش سمیت تمام اشیاء اوپن مارکیٹ کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں۔ گورنمنٹ نے ادھر جو سبسڈی دی ہوئی ہے برائے نام ہے، جو چیز سبسڈی میں ہمیں چاہیے وہ یہاں سے ملتی نہیں ہے۔ اب آٹے کا آپ پتہ کر لیں وہ بھی یہاں سے نہیں ملے گا، آپ ادھر سے گھی کا پتہ کر لیں وہ بھی نہیں ملے گا۔ پہلے 5-7 دن انہوں نے دیا، 10 دن دیا، 300 روپے کلو جو گورنمنٹ کی سبسڈی تھی۔ اب جی ان کے پاس آرڈر آ گئے ہیں، جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں دے سکتے، صرف ہم آپ کو یہ 3 کلو چینی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز بنائے تو عوام کو سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن سستی اشیاء نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور پر آنے والے صارفین کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ رمضان پیکج بحال کیا جائے تاکہ صارفین کو سستی اشیاء مل سکیں۔ منیر حسین، سچ نیوز، سناما۔ ادھر سکھر میں رمضان المبارک کے موقع پر انتظامیہ کا لگایا گیا بچت بازار عوام کو کم قیمت پر اشیاء فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ مزید بتا رہے ہیں حاجی ریاض کھوکھر اپنی رپورٹ میں۔ عوام کے لیے رمضان المبارک میں بچت بازار تو لگ گیا لیکن قیمتیں کم نہیں ہیں۔ انتظامیہ مہنگائی کے اس تیز ترین طوفان میں بچت بازار کے نام پر غریب اور متوسط طبقے کو سستی اشیاء خرد نوش فراہم نہ کر سکی۔ آٹا جو دستیاب ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اس میں بازار سے مہنگا آٹا خرید کر سستے آٹے میں ملا کر کھانے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی بھائی بہت مہنگائی ہو رہی ہے، غریب انسان کہاں سے لے گا؟ اب یہ 1150 کا دے رہے ہیں، اس میں ملا کے بچے کھائیں گے، ایسے تو کھایا بھی نہیں جاتا یہ والا آٹا۔ اب بازار سے 1300 کا ہے، اب یہاں 1150 کا، تو یہ 150 روپے میں بچے ملائیں بھی کھاتے بھی نہیں ہیں، پھر فائدہ بھی کچھ نہیں ہے اس میں، اور کم بھی ہے یہ آٹا۔ نہیں مہنگائی تو بالکل ہے، پر ہم سمجھے تھے بازار سستا بازار لگا، پر یہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہے کسی چیز میں بھی۔ 10-10 20-20 روپے کا فرق ہے۔ آدمی اتنی دور سے آئے رکشے کا کرایہ کر کے یا موٹر سائیکل کا تیل جلا کے، اس سے اچھا یہ محلے میں ہی لے لے 20-30 روپے کی چیز اوپر کر کے۔ بس یہی مطالبہ ہے کہ بس خدا را خوف کریں، دیکھیں کچھ عوام پہ ترس کھا لیں۔ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے، لوگ
पता नहीं किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। फिक्रिया है कि इंतजामिया सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी कर रही है। हुकूमत इस बाबरकत महीने रमजानुल मुबारक में आवाम को कम कीमत अशिया खुर्दे नोच फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज, सखर। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। सखर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नायाब हैं। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए जाहिद शेख की। रमजानुल मुबारक के अयाम में भी मुतवस्सित तबका परेशान हाल है। सक्खर शहर में कायम यूटिलिटी स्टोरों पर घी और चीनी के बाद अब आटा नायाब हो गया। दर्जनों शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। इस हवाले से यूटिलिटी के जोनल मैनेजर ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि सिस्टम में फनी खराबी के बाइस थोड़ी सी परेशानी आई थी, मगर अब ऐसा नहीं है। हमारे पास तो चीनी और घी सारा कुछ अवेलेबल था, लेकिन सिर्फ आटा थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसमें नहीं आया था। लोकेशन आ गई थी इस रमजान में, वो भी इस वक्त अवेलेबल हो गया है। मगर दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा रमजान से कबल ही गायब है, जो कि दस्तयाबी का मसला अब तक बरकरार है। हुकूमत की तरफ से हम मुसलमान भाइयों के लिए रमज़ान का तोहफा दिया गया है। उस सूरत में कि रमज़ान शरीफ आने से पहले ही इन्होंने आटा गायब कर दिया है, और उसके बाद जो घी की कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। अब इस महंगाई के दौर में जो बंदा दिहाड़ी कमाने वाला किस तरह अपना गुजारा करे, और इस रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में अपने बच्चों का पेट कैसे पाले। शहरियों का मजीद कहना था कि यूटिलिटी कारपोरेशन सक्खर रीजन के अफसरान को इस हवाले से नजरसानी करनी चाहिए और सक्खर के तमाम स्टोर्स पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज, सक्खर। और बिलों में जालिमाना टैक्स नामंजूर। पाकपतन शरीफ में ज़रई ट्यूबवेल के बिलों में इजाफी टैक्स पर किसान सरापा एहतजाज। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। पाकपतन शरीफ में आज पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप की बड़ी बैठक। ज़रई ट्यूबवेल के बिलों में इजाफे और इनमें जालमाना टैक्स के खिलाफ शदीद एहतजाज। किसानों का कहना है पहले शदीद मुआशी बदहाली का शिकार है, हम में इतनी सख्त नहीं कि हालिया बारिशों और तूफान से हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और हुकूमत की तरफ से इमदादी कीमत भी कम है, इससे हमारे नुकसान पूरे नहीं होंगे। ऊपर से आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफे, किधर जाएं कोई पुरसाने हाल नहीं। हम अपने प्यारे वजीर आजम से ये अपील करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी से अपील करते हैं, और हमारी हमें तकलीफ है, अगर ये हमारी इन्होंने मामला हल न किए तो इसके साथ ये ज़राअत खत्म हो जाएगी। आज हमारी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद अनवर ग्रुप की मीटिंग हुई है, जिसमें हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भरपूर तरीके से एहतजाज करते हैं। जो बिजली के ऊपर जो जालमाना टैक्स लगे हैं ये फ़ौरन ख़त्म किए जाएं, नहीं तो पाकिस्तान तो ज़राअत तो पहले ही तबाह हो चुकी है, और जो मुल्क का हालात है वो सबके सामने है। एक ज़राअत ही है जिसकी वजह से मुल्क चल रहा है। अगर हमारे टैक्स ख़त्म ना किए गए तो हम बिल पे नहीं करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप के ज़िलाई सदर राना फरियाद और सीनियर रहनुमा रईस अहमद लखो का, मनशा साबू का और चेयरमैन पाकपतन गुलाम फरीद जोया का मजीद कहना है कि अगर हुकूमत वक्त ने बिजली के बिलों में इस तरह जालमाना टैक्स का तसलसल बरकरार रखा तो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। हम पहले ही शदीद मुआशी बदहाली का शिकार हैं। पाकपतन के किसानों ने हुकूमत वक्त से गुजारिश की कि बराए मेहरबानी बिजली के बिलों में जो जालमाना टैक्स है इसे फौरी खत्म किया जाए, पहले हम शदीद मुआशी बदहाली का शिकार है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। ठुल हमजा की पंजनद कैनाल अरसा दराज से बंद है। पानी की अदम दस्तयाबी के सबब गंदम की तैयार फसल मुतासर होने का खदशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज अहमद। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर पंजनद कैनाल अरसा दराज से बंद। नहर के बंदे से ठुल हमजा समेत मुख्तलिफ इलाका जात के किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना। गंदम की तैयार फसल समेत दीगर फसलात मुतासर होने का खदशा। किसान महंगे दामों डीजल तेल खरीद कर जाती पीटर चलाने पर मजबूर। इस बारे किसानों ने बताया कि हुकूमत ज़राअत दुश्मन पॉलिसियां तार करके नहर पंजनद में पानी छोड़े, तेल खाद स्प्रे सस्ते करके रिलीफ फराम करे। मैं हुकूमत को अपील करना अरसे दराज कनू पंजनद नहर जरी ए बंद है। अच्छा असारे कोल ना डीजल दे पैसे, डीजल बहु महंगा थी गए। अच्छा असाजा फसल जरिया वो सुकिया वञे। असां अपील करने से मेहरबानी करते पंजनद को चलाया वञे, बहु अरसे कनू ए बंद थी पी। महंगाई की चक्की में पिसे किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि खुदारा हमें रिलीफ फराम करें ताकि अपने पैरों पर आप खड़े हो सकें। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठुल हमजा। तांदलियावाला में गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई है। तूफानी बारिशों से हजारों एकड़ पर काश्त की गई गंदम की फसल जमीं बोस हुई। किसान सर पकड़ कर बैठ गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट में।
तांदले वाला और इसके गिरदो नवा में गंदम की फसल पककर तैयार हो गई, मगर हालिया बेमौसमी बारिशों और तेज हवाओं के सबब गंदम की कटाई शदीद मुतासर हो रही है। हजारों एकड़ पे काश्त गंदम की फसल बारिशों के सबब जमीन बोझ हो गई, जिसके बायस पैदावारी हजम में भी कमी का खदशा है। तहसील तांदले वाला और इसके गिरदो नवा में बेमौसमी बारिशों और गहरे बादलों के साए एक जानिब जहाँ खुशगवार मौसम की नवीद है, वहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिशों ने गंदम की तैयार फसल को शदीद मुतासर किया है। जिला फैसलाबाद की तहसील तांदलावाला के बेशतर इलाकों में गंदम की कटाई का मरहला अभी बारिशों के बायस ताखीर का शिकार हो रहा है। शदीद बारिशों के बायस गंदम की कई हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें गिर चुकी हैं। वहीं जमीन से लगे गंदम के सिट्टे बुसीदा होकर अपनी असली हालत खो रहे हैं, जिसके बायस न सिर्फ किसानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं गंदम की कटाई के मरहले में भी दुश्वारी के साथ गंदम की औसतन पैदावार में भी नुमाया कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। और आपको बताएं, पसरोर के नवाही कस्बे बिन बाजवा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सस्ता रमज़ान बाजार का एहतमाम किया है, जिसमें 70% रियायती नर्ख पर अशिया खुरनोश की फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अज़हर से, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। अज़हर, बताइएगा किस तरह से ये तकसीम की जा रही है और शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पसरूर के कस्बा बन बाजवा में। यहाँ पर इन्होंने अपनी मदद आपके तहत गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए रमज़ान बाज़ार लगाया हुआ है, और मेरे साथ वो शख्स इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने ये रमज़ान बाज़ार लगाया है। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे मैनेज किया और उनको ये कैसे सोच आई कि इस तरह करना चाहिए ताकि गरीब आवाम को फ़ायदा मिल सके। जी मैंने जब फर्स्ट रमज़ान था तो मैं फेसबुक पे लाइव जा रहा था। मेरे फेसबुक फ्रेंड मेरी इस गांव के निवासी, वो यूके में मुकीम है, मोहम्मद तारक उनका नाम है। अब नाम लेना ही मुझे पड़ा है, पहले तो मैं नाम नहीं था ले रहा, अब नाम मुझे लेना ही पड़ा। उन्होंने देखा तो मैं खजूरों की बात कर रहा था कि जी खजूरें बहुत महंगी हैं। वाकया हम ये जो मुनाफाखोरी करते हैं बेशुमार करते हैं, बस उन्होंने देखा, उस दिन से उन्होंने मुझे कहा कि ये काम आपने करना है। वो पैसे भिजवाते हैं और हम ये सारा मैनेज करते हैं। मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं, सारे हम इकट्ठे इनको मैनेज करते हैं, जिसमें सब्जी वगैरह है, दालें वगैरह हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं 70% और 50%। जो ज़्यादा महंगी हैं वो 70% उन पर डिस्काउंट देते हैं, जो कम महंगी उन पे 50% डिस्काउंट देते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं उस पर 70% डिस्काउंट दे रहे हैं ये, और जो चीज़ें कम महंगी हैं उस पर 50%। बहुत शुक्रिया अज़हर, तफसीलन आगाह करने के लिए। माह सियाम में गिरां फरोश हुए हैं बेलगाम। खैरपुर में भी खजूर की कीमतें आसमान पर पहुँच गई हैं। शहरी महंगे दामों खजूर खरीद कर इफ्तार करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए अली गौहर की। रमजान मुबारक का महीना आते ही खजूर की अहमियत और उसकी मांग में इजाफा हो जाता है। सरकारी सरपरस्ती न होने के बायस खजूर के आबादगार और शहरी सख्त परेशान नजर आते हैं, मगर गुज़िश्ता साल होने वाली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद खजूर की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह होने के बाद खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 200 रुपए से 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली खजूर 1000 रुपए से 1200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। हमारी 90% जो क्रॉप है वो असील है और वो ऑलमोस्ट अगस्त में ही आता है, और अगस्त में मानसून आता है। अगर हम इसको स्विच करें अदर वैरायटीज़ की तरफ, कोई लेट वैरायटीज़ होती हैं जो सितंबर में आती है, जो अक्टूबर में आती है, जो मानसून को अवॉइड कर सकती हैं। खजूर बिल्कुल ख़राब हो गई, जो थोड़ी बहुत बच गई वो भी बारिशों की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गई। बाहर का प्रोडक्ट जो भी आ रहा है, एक तो इलीगल तरीके से आ रहा है, लीगल तरीके से नहीं आ रहा जो हम कह सकें कि वो पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहा है या पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा दे रहा है। हालात आपके सामने है, पूरा फसल तबाह हो गया और जो बाकी बाहरों की खजूर आ रही है वो महंगी है। जहाँ की होती थी गुजारा चल जाता था। खजूर के आबादगारों का मुतालबा है कि बाहर से आने वाली खजूर को रोका जाए। दूसरी तरफ इफ्तारी के लिए शहरियों को महंगे दामों खजूर खरीदना पड़ रही है। खजूर की कीमतों में कमी की जाए। कैमरा टीम के साथ अली गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। हुकूमत बदली चेहरे बदले, ना बदली तो महंगाई में पिसे अवाम की किस्मत। गिरां फरोश हैं बेलगाम। दीपालपुर में खजूर की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा गरीब अवाम के लिए परेशानी ही परेशानी है। रिपोर्ट देखिए अयूब खावर की।
रमजान के मुकद्दस महीने में खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खजूर का इस्तेमाल रोजा की इफ्तारी में ज्यादा किया जाता है। नबी दो जहां का सुन्नत अमल समझकर इससे इफ्तारी की जाती है। खजूर का रेट माह रमजान से कबल 300 रुपए था, जो कि बढ़कर 600 रुपए तक जा पहुंचा है। ग्राम फरोशों ने मन माने रेट होने की वजह से दीपालपुर के शहरियों का खजूर खरीदना भी मुश्किल हो गया। रमजान शरीफ का कोई ख्याल नहीं करता। आम खजूर जो हरानी है वो रमज़ान शरीफ से पहले 300 की थी, अब 500 550 में मिल रही है। रमज़ान से पहले खजूर का 300 रुपये रेट था, जो अब बढ़ के माह रमज़ान में सस्ता होने की बजाय, रिलीफ देने की बजाय जो है 600 रुपये किलो हो गई है। गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। शहरियों का कहना था कि खजूर के मन माने रेट की वजह से अफ्तारी के लिए खजूर खरीदना नहायत ही मुश्किल हो गया है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की तरफ तवज्जो दे। खुद साख्ता महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल कर रख दी। माह रमजान से कबल 300 रुपए बिकने वाली खजूर 600 रुपए में फरोख्त होने लगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब कावर, सच न्यूज़ दीपालपुर। दीपालपुर के बाद बात करेंगे डिग्री की, जहां पर हुकूमत की जानिब से रमज़ान बचत बाजार तो लगाया गया, जहां शहरियों को अशिया खुरनोश में खसूसी सब्सिडी दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अली की रिपोर्ट में। डिग्री में हुकूमत सिंध की जानिब से लगाए जाने वाले रमजान बचत बाजार की रौनकें बहाल होना शुरू हो गयी। महंगाई से परेशान हाल शहरियों और गांव देहातों के लोगों ने मरकजी बाजार से दूर होने के बावजूद बचत बाजार का रुख कर लिया। रमजान बचत बाजार में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ न सिर्फ आटा, चावल, दालें, घी, मशरूबात, सब्जियाँ, मुर्गी का गोश्त, फल और चीनी के स्टॉल मौजूद हैं, बल्कि मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जहाँ डॉक्टर मरीजों का तिब्बी मुआयना कर रहे हैं। मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की जा रही है। हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया है। आलू जो है 30 रुपये किलो है, प्याज 60 रुपये किलो है, 3 किलो सब्जी जो है 60 रुपये की है, और आटा 5 किलो का थैला 500 रुपये का है, और अद्वियात जो है बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं। और आज हमने जो इतने रेट जो कम लगाए हैं, उसकी वजह यह है कि शहर में बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, तो हमने कोशिश की है कि महंगाई कम हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो बचत बाजार लगाया है रमजान सिटी में, हमारे डिग्री शहर में भी लगाया गया है। इसमें सामान हस्बे रियायत मिलता है, लेकिन शहर से दूर है और काफ़ी हद तक सामान में रिलीफ मिल रहा है, लेकिन दूर होने की वजह से लोग काफ़ी नहीं आ पा रहे हैं, ना पता लग रहा है। कल जैसे अंजुमन अरैया ने यहाँ पर लगाया बचत बाजार, जिसमें सब्जी अब्जी मेडिकल दिया, ये बहुत अच्छा काम था। इसके अलावा मजीद बाजार भी लगाए जाएँ, मजीद दुकानों को कॉस्मेटिक भी लाई जाए। शहरियों का मजीद मुतालबा है कि यहाँ पर मजीद स्टॉल लगाए जाएँ ताकि भरपूर रिलीफ मिल सके। जलालपुर पीरवाला में बारिश के बाद हसीन मनाजिर धुल कर मजीद निखर गए। गर्मी छूब मंतर हो गई। रंग बिरंगे फूल शहरियों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए सादुल्ला मदनी की। बहार के मौसम में आया बारिशों का सीजन, जाती सर्दी एक बार फिर से लौट आई। जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह जलालपुर पीरवाला में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सर्द और हसीन बना दिया। हर तरफ गुलाब, चमेली और मोतिया के फूलों ने हर नजारा दिल फरेब बना दिया, जो हर आंख को लुभाने लगा। बारिशों के मौजूदा स्पेल में मौसम बहार में हर चेहरे पर भी बहार दिखाई देती है, तभी तो शहरी मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं और खूब इंजॉय करते दिखाई देते हैं। बहार की आमद है, इसकी वजह से दरख्तों और पौधों में नई जान आ गई है। जैसा कि गुलाब और चंबेली का फूल इस मौसम में बहुत प्यारा लगता है, उसका रंग खिल उठता है। मौसम बहार कुदरत का एक हसीन तोहफा है। इन दिनों बारिश भरा खूबसूरत मौसम इंसानी मिजाज पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर रहा है। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। लज्जत से भरपूर शीरीं जायके से मुज़य्यन मंडी शाह जीवना का तरबूज बेहद मकबूल है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि तरबूज खाने से पानी की कमी पूरी होती है। रिपोर्ट देखिए रियासत अली हाशमी की। मंडी शाह जीवना लाल रंग का तरबूज पककर हो गया तैयार, जो मुख्तलिफ सी बीमारियों को भी दूर करता है और खून को भी साफ करता है। बच्चे और बड़े तरबूज को शौक से खाते भी हैं, और फिर बड़े तरबूज को खेत से तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद एक ही जगह पे जमा किया जाता है। जमा करने के बाद फिर इसको ट्रक में लोड किया जाता है। ट्रक में लोड करने के बाद मुख्तलिफ से शहरों में भेज दिया जाता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कुशाब, कराची, और फिर दुकानदारों की दुकान की जीनत बनता है। साथ साथ इसको रोजेदार भी बहुत शौक से इससे रोजा अफ्तार करते हैं। गंदम की कटाई का सीजन करोड़ पक्का में ज़रूरी मशीनरी और ट्रैक्टर वर्कशॉप्स पर किसानों का रश। दुकानदारों के वारे न्यारे हो गए। राव फखरुज़मा कमर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कैरोड़ पक्का में भी गंदम कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, और साथ ही ज़रूरी मशीनरी और ट्रैक्टर वर्कशॉप में रश बढ़ गया है, जहां किसान ज़रूरी मशीनरी और ट्रैक्टर की मुरम्मत कराते नजर आ रहे हैं। जी गड्डी बनवाना है वर्कशॉप च,
ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ सी सारे को रश रह वेंदे, मजीद कणक की कटाई विच सारे को रश ज़्यादा थी वेंदे। तो इंशाअल्लाह असां ना तय दिल नाल काम करेने। गंदम कटाई के शुरू में ज़री मशीनरी और ट्रैक्टर की देखभाल किसान ज़रूरी समझते हैं ताकि आइंदा उन्हें कोई ज़री मशीनरी में परेशानी का सामना ना हो। ट्रैक्टर वर्कशॉप मिस्त्रियों का यही कहना है कि सीज़न के शुरू होते ही किसान हमसे जो ट्रैक्टर का काम करवाने आते हैं वो हमारी कोशिश होती है कि ट्रैक्टर का काम तसल्ली बख्श किया जाए ताकि पूरे सीज़न में उन्हें कोई परेशानी का सामना ना हो। कैमरा टीम कैमरा रो फखरुज़मान नुमाइंदा सच न्यूज़ कैरोड़ पक्का। यूँ तो मुफ्त आटे के हसूल में शहरियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चकवाल में मुफ्त आटा स्कीम के तहत 3 मेगा आटा पॉइंट्स कायम किए गए हैं जहाँ मुस्तहिकीन को बाइज़्ज़त तरीके से आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। चकवाल के अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए जिले इंतजामिया चकवाल ने निजी हाल में मजीद 1 मेगा आटा पॉइंट कायम कर दिया है। इस पॉइंट की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल बख्तियार इस्माइल कर रहे हैं और अपनी निगरानी में मुस्तहिक अफराद में आटे की तकसीम करवा रहे हैं। मुफ्त आटे के असूल के लिए आने वाले मर्द खवातीन के लिए बैठने का मुनासिब बंदोबस्त भी किया गया है और शहरियों की रहनुमाई के लिए काउंटर भी कायम है। हमने जो है 3 मेगा पॉइंट्स बनाए हैं, रमज़ान बाज़ार, संजोग मैरिज हॉल और मॉडल बाज़ार पिनवाल रोड। इसके अलावा हमारे जो हैं 24 यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहां पर हम मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि अपनी शनाख्त अपनी जो है पहले एलियत चेक करने के लिए 8070 पर मैसेज करें। अगर आपको मैसेज आ जाता है तो आप अपने करीबी जो है यूटिलिटी स्टोर या मेगा पॉइंट पर विजिट करें। मुफ्त आटा स्कीम से फायदा हासिल करने वाले मुस्तहिकीन वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के इकदाम को सराहते नजर आ रहे हैं। आज आसानी से आटा मिल रहा है, बहुत शुक्रिया हुकूमत का जिन्होंने हमारा इतना ख्याल किया। चकवाल के शहरी कहते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने माह रमजान के बाबरकत महीने में गरीब आवाम के लिए मुफ्त आटा स्कीम शुरू किया। हम मुतालबा करते हैं कि इस स्कीम को माह रमजान मुबारक के बाद भी जारी रखा जाए। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। लोअर दीर में अल खिदमत फाउंडेशन की सस्ती रोटी प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। मुख्तलिफ शहरों में रोज़ाना हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। अल खिदमत फाउंडेशन की सस्ता रोटी प्रोग्राम लोअर दीर में भी कामयाबी के साथ जारी है और अल खिदमत फाउंडेशन ने लोअर दीर के हेडक्वार्टर तेमरगरा समेत चकदरा, अलकला और खाल जंदूल में अल खिदमत सस्ता रोटी तनूर कायम किए हैं, जिससे रोजाना हजारों शहरी आधी कीमत पर रोटी खरीद कर मुस्तफीद हो रही है। शहरी और अफ्तारी के औकात में अल खिदमत सस्ता तनूर पर शहरियों का रश लगा होता है। खिदमत फाउंडेशन लोअर दीर ने 3 जगहों पे आधी कीमत पर रोटी देने के लिए तंदूर लगाए हुए, इसमें एक तेमरगरा में लगाया हुआ है जो गरीब लोगों के लिए आधी कीमत पे रोटी देती है। खिदमत फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा मशकूर है कि अल खिदमत फाउंडेशन दीर लोअर ने मुख्तलिफ मकामात पर सस्ता तंदूर लगाया है और इसलिए आधा कीमत पर तकरीबन 10 रुपये पर रोटी लोगों को मुहैया करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िले सदर हफीजुल्लाह खाकसार, तहसील तेमरगरा के सदर फहीमुद्दीन और रिलीफ इंचार्ज इश्तियाक अहमद का कहना है कि अल खिदमत सस्ता रोटी प्रोग्राम का बुनियादी मकसद गरीब शहरों को रिलीफ फराहम करना है और अल खिदमत फाउंडेशन का ये प्रोग्राम आखिर रमजान तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अल खिदमत फाउंडेशन लोअर दीर अनकरीब मुस्तहिक खानदानों में रमजान पैकेज तकसीम करेगी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। मुजफ्फरगढ़ में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। रवां साल 1,52,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफसीलात समीउल्लाह की रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने खरीदारी मरकज पर रिबन काट कर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इमरान शमस और जिले ऑफिसर खुराक अदील अरशद भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर सलमान लोधी का कहना था कि रवां साल 1,25,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया, जिसके लिए जिला भर में 17 खरीदारी मराकज फाल कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खरीदारी मराकज पर तमाम तर सहूलियात फराम कर दी गई हैं और काश्तकारों को बारदाना की फरामी भी शुरू कर दी गई है। हमारा टोटल टारगेट जो है वो तकरीबन 12,50,000 बैग्स लेना है गंदम के
اور ہمارے پاس باردانہ جو ہے اس وقت وہ 16 لاکھ بیگز کا اویلیبل ہے، باردانہ زیادہ اویلیبل ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم 130%، 140% اچیو کریں۔ تمام سینٹرز آج سے فعال کر دیے گئے ہیں۔ گندم خریداری کے لیے بہترین انتظامات موجود ہیں۔ 3900 روپے من سرکاری گندم کا ریٹ مختص کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیلیوری چارجز ہیں اس کا بھی ریٹ پچھلے سال سے مزید بڑھا کے جو ہمارے کسانوں کی سہولت کے لیے وہ 60 روپے پر بیگ جو ہے نا 100 کلو والی بوری کر دیا گیا ہے۔ کمشنر سلمان خان لودھی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کاشتکاروں کو زیادہ ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کاشتکاروں میں باردانہ بھی تقسیم کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ کبیر والا عبدالحکیم میں ژالہ باری کے سبب گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی ہے۔ شدید بارشوں سے فی ایکڑ اوسط پیداوار میں بھی کمی کا خدشہ ہے۔ رپورٹ دیکھیے چودھری راہیل ریاض کی۔ حالیہ موسلا دھار بارشوں اور ژالہ باری نے جہاں موسم پر خوشگوار اثر ڈالا، وہیں کسانوں کی تیار فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ کبیر والا اور اس کے گرد و نواح عبدالحکیم 12 میل چوپرہٹہ مخدوم پور میں گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی ہے۔ مہنگے داموں ڈیزل، پٹرول اور مہنگی زرعی ادویات کا استعمال کرنے والے کسان شدید بارشوں کے سبب گندم کی فی ایکڑ بہترین پیداوار حاصل کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ حالیہ شدید بارشوں اور ژالہ باری کے سبب کسانوں کی کھڑی فصلیں بھیگ کر نرم ہو کر گر گئیں اور تیز و تند ہوا نے باقی ماندہ کھڑی فصل کو بھی لٹا کر رکھ دیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ گندم کی فصل مکمل تیار ہو چکی ہے اور اچھی اوسط پیداوار کی بھی امید تھی، مگر حالیہ بارشوں کے سبب فی ایکڑ اوسط پیداوار میں بھی کمی کا خدشہ ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ تو گندم دی فصل ڈگ گئی ہے۔ ٹائم تو پہلے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ مینوں نہیں لگتا بھی میرے اندازے مطابق اس دفعہ 10 تو 20 من فی ایکڑ پیداوار گندم دی آوے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ میرا زراعت دے اعلیٰ افسران نو ریکویسٹ ہے کہ وہ آ کے فیلڈ وزٹ کرن تو بعد کوئی پیکج بنا کے اعلیٰ حکام تو کسانوں نو ریلیف دیواون دی کوشش کی تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مزید بارشوں کی پیش گوئی سے کسانوں کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے۔ کبیر والا عبدالحکیم کے کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر مدد کی اپیل کی ہے تاکہ گندم پر خرچ کی گئی لاگت کو پورا کیا جا سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ چودھری راہیل ریاض، تحصیل رپورٹر سچ نیوز کبیر والا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے بورے والا کے آٹا پوائنٹس کا دورہ کیا، آٹے کی تقسیم کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ رپورٹ دیکھیے محمد کریم سیفی کی۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے قائد اعظم اسٹیڈیم بورے والا میں قائم ضلع کے سب سے بڑے آٹا تقسیم پوائنٹ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آٹے کی تقسیم اور سیکیورٹی کے حوالہ سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے اسے تسلی بخش قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک ضلع بھر کے 12 سینٹرز پر آٹے کے 8 لاکھ تھیلے مفت تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ 22,000 کا آج کا ٹارگٹ تھا اس سینٹر کا، لیکن 22,000 ہم اچیو کر چکے ہیں۔ ابھی بھی 3-4 ہزار اور ہم آٹے کے جو بیگ ہم نے منگوا لیے ہیں ایکسٹرا، یہ دیکھتے ہوئے کہ جو خواتین یہاں پہ آئی ہوئی ہیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کر سکیں۔ آٹے کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں نے بھی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آٹا جان واسطے آئی سی بورے والا اسٹیڈیم دے وچ بہت اچھا نظام، سیکورٹی دا، پولیس دا نظام بہت اچھا وا۔ اے سی صاحب آئے سی، انہوں نے چیک کیتا اور پور امن طریقے نال آٹا مل رہا وا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ساڈے عوام صبر نہیں ہے، اسی صبر کریے، ہر چیز ملتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس گل دا۔ آٹے کی مفت تقسیم کے حوالہ سے جہاں دیگر شہروں میں بد نظمی کے واقعات سامنے آئے ہیں، وہاں ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے مثالی انتظامات کی وجہ سے بورے والا میں آٹے کا حصول آسان بنا دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد کریم سیفی، سچ نیوز بورے والا۔ چھانگا مانگا میں بوائز ہائی اسکول میں سالانہ نتائج اور تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی گئی۔ اساتذہ، طلبہ اور والدین سمیت معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رپورٹ دیکھیے رانا الیاس خان کی۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بدھوکی میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ کرام، طلباء، والدین سمیت معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں تشریف لانے والے مہمانان گرامی اور اساتذہ کرام نے پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات تقسیم کیے اور نقدی رقم دے کر بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر عظیم نعمت کا کہنا تھا کہ آج کے اس تیز ترین دور میں تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم سے ہی ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ استاد وہ نہیں جو محض 4 کتابیں پڑھا کر اور کچھ کلاسز لے کر اپنے فرائض سے مبرا ہو جائے، بلکہ استاد وہ ہے جو طلباء و طالبات کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرے اور انہیں علم و فکر و عمل کی دولت سے مالا مال کرے۔ تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا الیاس خان، سچ نیوز، چھانگا مانگا۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ مورو کے نواحی علاقے کا رہائشی عبدالقدیر گزشتہ 1 سال سے پراسرار بیماری میں مبتلا ہے۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ تمام جمع پونجی علاج میں خرچ کر دی۔ ورثہ نے حکومت اور مخیر حضرات سے امداد کی اپیل کی ہے۔ رپورٹ دیکھیے دائم درسائی کی۔
मोरो से 3 किलोमीटर के फासले पर गांव डेपारजा खड़क सिंह की रहासी 40 साल अब्दुल कदीर मुगल को 1 साल कबल अचानक मुंह में एक छाला पैदा हुआ, जिसके बाद आस्ता आस्ता वो गहरे जख्म में तब्दील हो गया, जिसके इलाज के लिए उन्हें कराची के एक निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने विरसा को कैंसर की बीमारी बताई, जिससे वो सख्त परेशान हो गई। मेरा बेटा कदीर है, अब्दुल कदीर, वही इसके कैंसर की बीमारी है। हमने बहुत इलाज करवा लिया, जो हमारे पास था वो हम सब लगा चुके हैं। उस दाने करके फिर ये मुंह में बीमारी लग गई, जो कुछ लगा दिया। परेशान लगा पड़ा है, जो हमारे पास जमा पूंजी थी हमने बहुत कुछ कराया, जो बहुत इलाज कर लिया। भाई जो भी हो सके हमारी मदद करो मेरे भाई की। मुसलसल 1 साल इलाज करवाने के बाद घर में मौजूद सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। अब हुकूमत और मुखिर हजरात की मदद के मुंतजर हैं। आएँ और हमारी मदद करें ताकि हम अपने बच्चे का इलाज करवाएं। 5 बच्चों का वालिद है। वालिद की बीमारी के बाद बच्चों की तालीम भी खत्म हो चुकी है। कैमरामैन अनीस कुरैशी के साथ दाइमदर साई, सच टीवी न्यूज़, मोरो। हज़रों में वज़ीर आज़म स्कीम के तहत फ्री आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। सैकड़ों गरीब और मुस्तहिक अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए साजिद महमूद खान की। वज़ीर आला पंजाब के मिशन के मुताबिक ज़िले इंतजामिया अटक की जानिब से फ्री आटा गरीब आवाम की तकसीम किया जाने लगा। ज़िले अटक की दीगर तहसीलों की तरह तहसील अजरम में माह श्याम के बाबरकत महीने में गरीब आवाम को मुफ्त आटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हजरो राना कमरान अशरफ की जेर निगरानी और थाना हजरो पुलिस की मौजूदगी में गरीब और मुस्तहिक अफराद को रोजाना की बुनियाद पर फी घराना को 3 आटे के थैले 10 किलो दिया जाता है। माह श्याम के बाबरकत महीने में 25 रमजान तक मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। तहसील अजहर की आवाम के लिए 8000 डेली आटे के थैले मुनज़्ज़म तरीके कार से गरीब आवाम में तकसीम किए जाते हैं। खवातीन के लिए अलग पॉइंट दिया गया और मर्द हज़रात के लिए अलग पॉइंट बनाए गए। कैमरामैन टीम के साथ साजिद अली खान, अटक। आपको बताएं लाल सुहानरा के सरकारी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। रिपोर्ट देखिए राशिद लतीफ की। लाल सुहानरा के नवाई इलाका डेरा बक्खा गवर्नमेंट हाई स्कूल डेरा बक्खा में सालाना रिजल्ट की तकरीब का इनेकाद किया गया। इम्तिहान में तकरीबन 300 से जायद बच्चों ने हिस्सा लिया। इम्तिहान नर्सरी से लेकर मिडिल क्लास के बच्चों का हुआ। स्कूल का रिजल्ट बेहतरीन आया, जिस पर वालिदैन ने उस्ताजा का शुक्रिया अदा किया और स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों में ट्रॉफी, शील्ड्स और कार्ड्स तकसीम किए गए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल डेरा बक्खा ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये इनामात की तकरीब बसिलसिला सालाना इम्तिहान और रिजल्ट थी, जिसमें इसी क्लास से 8वीं क्लास तक 362 तलबा ने हिस्सा लिया इम्तिहान में और सब के सब पास हुए। यही बच्चे हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पढ़ेगा पाकिस्तान तभी तो बढ़ेगा पाकिस्तान। कैमरामैन यूसुफ सऊ के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। रिपोर्ट आपने देखी। इसी के साथ सच न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए सच tv.pk और रहिए सच के साथ।